1944 کے 6 جون کو صبح سویرے تاریخ کی سب سے بڑی بحری الغار کا آغاز ہوا۔ 1,50,000 سے زیادہ اتحادی فوجی، جن میں اکثریت امریکیوں، برطانویوں اور کینیڈینوں کی تھی، نارمنڈی میں اترے اور شدید جرمن مزاحمت کا سامنا کیا۔ اس کارروائی کو آپریشن نیپچون کا نام دیا گیا، جو حکمت عملی کے تحت بنائے گئے منصوبے اوورلارڈ کا پہلا مرحلہ تھا، جس کا حتمی مقصد تیسری ریخ کا زوال تھا۔ 4 سالوں تک ہٹلر نے فرانسیسی ساحل پر بنکرز، خاردار تاروں اور بارودی سرنگوں سے قلعہ بندی کی تھی، اس یقین کے ساتھ کہ حملہ کالے میں ہوگا۔ تاہم اتحادیوں نے نارمنڈی کا انتخاب کیا، جس سے جرمن افواج حیران رہ گئے۔ اوماہا جیسی ساحلوں پر شدید جانی نقصان کے باوجود وہ اندرون ملک پیش قدمی کرنے میں کامیاب رہے۔ یہ الغار دوسری جنگ عظیم میں ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوئی، جبکہ اتحادی شمالی افریقہ اور جنوبی اٹلی سے نازیوں کو نکال چکے تھے، انہیں مغربی یورپ میں ایک نیا محاذ کھولنے کی ضرورت تھی۔ نارمنڈی پر قبضے کے بعد جرمنی مشرق میں سوختوہے اور مغرب میں اتحادی افواج کے درمیان پھنس گیا۔ وہ دن ہٹلر کے زوال کا آغاز ثابت ہوا۔ نارمنڈی کے ساحلوں پر قتل عام کیسا تھا اور جرمن مزاحمت کتنی سفاکانہ تھی۔ آپریشن اوورلارڈ، تاریخ کی سب سے بڑی الغار۔ 1940 کے موسم گرما میں ڈنکرک میں برطانوی فوج کی تباہ کن انخلا اور فرانس کی ہتھیاری کے بعد جرمنی نے مغربی یورپ پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ کئی سالوں تک اتحادیوں کے لیے یہ علاقہ دوبارہ حاصل کرنا ناممکن رہا۔ تاہم 1944 میں صورتحال یکسر بدل گئی۔ محور کی افواج ہر محاذ پر پسپا ہو رہی تھیں۔ تیسری ریخ اور سوویت یونین کے مابین جنگ ہو یا جاپان کی بحر الکاہل کی جنگ، دونوں میں مستقل شکست ہو رہی تھی۔ اس منظرنامے کے پیش نظر ریاستہائے متحدہ، برطانیہ اور کینیڈا نے فیصلہ کیا کہ براعظم پر واپس آ کر ایک نیا محاذ کھولا جائے۔ 1942 میں مغربی یورپ پر حملے کا پہلا منصوبہ بنایا گیا تھا، مگر وسائل کی کمی اور ڈیپے میں کینیڈین فوج کی ناکامی کے باعث اسے ترک کر دیا گیا۔ اس کے بجائے اتحادیوں نے آپریشن ٹارچ او کے تحت شمالی افریقہ اور بعد میں آپریشن ہسک کے تحت سسلی پر حملہ کیا۔ ایک سال بعد 1943 کی کیوبیک کانفرنس میں امریکی صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ اور برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے فرانس میں اترنے پر اتفاق کیا۔ تاہم اس اقدام سے پہلے انہوں نے اٹلی کے جنوب میں ایک حملے کو ترجیح دی، جس کے نتیجے میں اٹلی نے جرمنی سے اپنی اتحاد توڑ دیا۔ بالآخر نومبر 1943 میں روزویلٹ اور چرچل نے یوسف اسٹالن سے ملاقات کی اور مشرق میں ریڈ آرمی پر دباؤ کم کرنے کے لیے طویل انتظار شدہ دوسرا محاذ کھولنے کی تصدیق کی۔ فرانس کو حملے کے مقام کے طور پر منتخب کرنا آسان نہیں تھا۔ چرچل چاہتا تھا کہ بلقان، خاص طور پر یوگوسلاویا استریا میں اتر کر یوسف ٹیٹو کے گوریلوں سے اتحاد قائم کر کے جرمنی کی طرف بڑھا جائے اور وسطی یورپ میں کمیونزم کے پھیلاؤ کو روکا جائے۔ لیکن روزویلٹ، جس کا ملک حملے کی قیادت کر رہا تھا، اصرار کرتا رہا کہ اترائی فرانسیسی بحر اوقیانوس کے ساحل پر ہونی چاہیے۔ کوئی اور چارہ نہ دیکھ کر چرچل نے حملے کے مقام کا تعین کرنے پر توجہ دی، ناروے سے اسپین تک تمام امکانات کا جائزہ لیا۔ برطانوی ایڈمرل لارڈ لوئس ماؤنٹ بیٹن نے تجزیے کی قیادت کی اور کئی مقامات کو مسترد کر دیا۔ کالے کا راستہ بہت واضح ہونے کی وجہ سے، ہالینڈ اپنے نہروں کی وجہ سے، اسکاٹ لینڈ برف باری کی وجہ سے، بیلجیم سمندری لہروں کی شدت کی وجہ سے اور بریٹنی مناسب بندرگاہوں کی کمی کی وجہ سے۔ تمام اختیارات کا جائزہ لینے کے بعد صرف 2 ممکنہ علاقے باقی بچے اور لاہار کے درمیان اعلیٰ نارمنڈی اور شیربرگ اور کین کے درمیان نچلی نارمنڈی۔ بالآخر اتحادیوں نے دوسری جگہ کا انتخاب کیا۔ اس منصوبے کو آپریشن اوورلارڈ کا نام دیا گیا اور امریکی جنرل ڈوارڈ ڈی ایزن ہاور کے سپرد کیا گیا، جو اتحادی ایکسپیڈیشنری فورس کے کمانڈر ان چیف تھے۔ آئک کے نام سے مشہور یہ 54 برس کا فوجی افسر ساؤتھ وک ہاؤس پورٹسموتھ میں اپنا صدر دفتر قائم کیا اور اپنی کمانڈ ٹیم کو اکٹھا کیا۔ مارشل آرتھر ٹیڈر نائب کمانڈر کے طور پر، برنارڈ مونٹگمری بری افواج کے سربراہ کے طور پر، ایڈمرل بٹروم ریمسے بحری بیڑے کے انچارج اور مارشل لی مالوری فضائیہ کے سربراہ کے طور پر۔ حکمت عملی کو 2 کارروائیوں میں تقسیم کیا گیا: آپریشن نیپچون، جو سمندری حملے پر مرکوز تھی، اور آپریشن فارکیٹیوڈ، جو فضائی چالاکیوں پر مرکوز تھی۔
ज़मीनी अफवाज को 21वीं फौजी ग्रुप के तहत मुनज़्ज़म किया गया। ऑपरेशन ओवरलॉर्ड का दायरा नॉर्मंडी में इसी किलोमीटर पर मुहित था, जो 5 सेक्टरों में तकसीम था: ऊटा, ओमाहा, गोल्ड, जूनो और सॉवर्ट। अमरीकी अफवाज ने पहले 2 इलाकों की जिम्मेदारी संभाली, जबकि बरतानवी और कैनेडियनों ने बाकी 3 इलाकों की क़यादत की। हमला दसियों हज़ार फौजियों के उतरने से शुरू हुआ, जो मुख्तलिफ इन्फेंट्री डिवीजन्स और खुसूसी यूनिट्स में मुनज़्ज़म थे। उनके साथ फ़िज़ाई अफवाज ने रात के वक्त स्ट्रेटजिक पैराशूट जंप की, जिससे पिल्लों और सड़कों जैसे अहम मकामात को महफूज बनाया गया। फ़िज़ा में हज़ारों लड़ाका ट्रांसपोर्ट और बम्बार तैयारों ने मुआवनत फराहम की, जबकि समंदर में लगभग 7,000 जहाज़ों ने शानदार इत्तेहादी बेड़े की तश्कील दी। हमले को बरकरार रखने के लिए नकलो हमल की जदीद सहूलतें जैसे तैरते हुए बंदरगाहें और एक ज़ेर समंदर पाइपलाइन तामीर की गई, जो इंग्लैंड से फ़रांस तक ईंधन पहुंचाती थी। ये पूरी कार्रवाई, जिसमें लाखों फौजी और टनों सामान शामिल था, बरतानवी बंदरगाहों और फौजी अड्डों को मरकज़ बनाकर इंतहाई खुफिया तौर पर अंजाम दी गई। बड़ी चालाकी, इत्तेहादियों ने हिटलर को कैसे धोखा दिया। डी-डे पर जासूसी एक कलीदी उनसर साबित हुई, क्योंकि इत्तेहादियों ने अडोल्फ हिटलर को ये यकीन दिलाने में कामयाबी हासिल की कि हमला नॉर्मंडी के बजाय काले के रास्ते होगा। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियाँ अपनाई गईं। इनमें से एक हिकमत अमली जनरल जॉर्ज पैटन की सरबराही में एक भूत फौज की तख्लीक थी, जो रबड़ के टैंकों और गैर मौजूदा डिवीजन्स पर मुश्तमिल थी, ताकि जर्मन फ़िज़ाई जासूस तैयारे धोखा खा जाएं। मज़ीद ये कि कैंट में रेडियो नशरियात को बढ़ाया गया ताकि तवज्जो मज़ीद भटकाई जा सके। हस्पानवी जासूस जवान पवीविल उर्फ ओगारबू ने एक अहम किरदार अदा किया, जिसने दोहरे एजेंट के तौर पर काम करते हुए नाज़ियों को कायल किया कि असल हमला काले में होगा। इत्तेहादी फ़िज़ाइया ने भी इस चाल में हिस्सा लिया, जब कई महीनों तक नॉर्मंडी से दूर शहरों पर बमबारी की गई, जिनमें लेमान, तोर, पेरिस, रीम्स, ब्रसेल्स, लक्समबर्ग, कोलून और आचिन शामिल थे। ऑपरेशन से चंद दिन पहले कुछ वाक़यात पेश आए, जिन्होंने ये खदशा पैदा कर दिया कि मंसूबा इफ़शा हो चुका है। इनमें सबसे अजीब वाक़या डेली टेलीग्राफ के क्रास वर्ड पहेलियों का था, जिनमें ओमाहा, ऊटा और ओवरलॉर्ड जैसे अल्फाज एन हमले से पहले ज़ाहिर हुए। एक और वाक़या ये था कि लंदन में तेज़ हुआ की वजह से फ़ौजी दस्तावेज़ात सड़कों पर उड़ गईं, अगरचे उन्हें जल्दी बाजियाब कर लिया गया, लेकिन कोई ये यकीन से नहीं कह सका कि किसी ने उन्हें नहीं पढ़ा। इसी तरह एक अफसर ने एक ट्रेन में एक बैग भूल कर छोड़ दिया, जिसमें हमले की तफसीलात मौजूद थीं, जबकि रियासत हाय मुत्तहिदा में ऑपरेशन ओवरलॉर्ड की मालूमात वाला एक पैकेट गलती से एक गलत घर भेज दिया गया। इब्तिदाई तौर पर हमला 15 मई 1944 के लिए तय था, लेकिन समंदरी हालात और रोशनी की कमी की वजह से मौसमी माहिरीन ने इसे मुअख्खर करने की सिफारिश की। 2 मुमकिना अच्छी मौसमी खिड़कियां शनाख्त की गईं: 5, 6 और 7 जून के दिन, 19, 20 और 21 जून के दिन। बिलाखिर 5 जून का इंतखाब किया गया, लेकिन एक तूफान के बाइस मंसूबा मुलतवी कर दिया गया। पहले ही कश्तियों पर सवार फौजियों ने कई घंटे भीगते और बेचैनी में गुजारे, यहाँ तक कि दोपहर के वक्त मौसम में बेहतरी की तस्दीक हो गई और 6 जून को हमले का फैसला कर लिया गया। रिपोर्ट मिलते ही जनरल ड्वार्ट इज़नहावर ने हुक्म दिया, चली। हमले के आगाज़ से कुछ देर पहले इज़नहावर की फ़रांस की आज़ाद हुकूमत के रहनुमा चार्ल्स डी गाल के साथ एक कशीदा मुलाकात हुई। फ़्रांसीसी रहनुमा ने इस बात पर एतराज़ किया कि इत्तेहादी फ़ौजियों को फ़्रांसीसी सरज़मीन पर खर्च के लिए फ़िरांक दिए जा रहे थे। बहस के बाद इज़नहावर ने इन अमरीकी प्राट्रोपुर्स का दौरा किया, जो इसी रात रवाना होने वाले थे। वो हैरान रह गया जब उसने देखा कि बहुत से सिपाहियों ने अपने सर मुहाक तर्ज पर मनवा रखे थे। वजह पूछने पर एक ने जवाब दिया, जनरल, हम जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, हमें घर वापस जाने की जल्दी है। इज़नहावर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी। 5 जून की शाम साउथ हम्पटन, डोवर, पोर्ट्समाउथ और प्लिमूथ की बंदरगाहों से हज़ारों बहरी जहाज़ फ़रांस की जानिब रवाना हुए। इनमें तबाहकुन जहाज़, क्रूज़र और लैंडिंग क्राफ्ट्स शामिल थे, जबकि फ़िज़ाई बीड़ा ऊपर निगरानी कर रहा था। जब फ़ौजी दस्ते चैनल क्रॉस कर रहे थे, इज़नहावर ने एक हौसला अफजा पैगाम भेजा, जिसमें उन्हें मिशन की अहमियत और यूरोप को आज़ाद कराने के अज़्म की याद दहानी कराई गई। अटलांटिक वाल और रोमेल की गैर मौजूदगी। ये एक वसी साहिली कलाबंदियों का जाल था, जो तीसरी रीख ने नॉर्वे के कैप नॉर्थ से लेकर बाइसके की खलीज तक, बिल्कुल स्पेन की सरहद तक तामीर किया था, जो गैर जानबदार रहा।
इस वसी दिफाई निज़ाम को प्रोपेगेंडा के वज़ी जोसेफ गोबल्स ने नाकाबिल उबूर रुकावट करार दिया था, जिसका मकसद इंग्लैंड से किसी भी मुमकिना हमले को रोकना था। अगरचे ये एक शानदार इंजीनियरिंग का कारनामा था, लेकिन इसकी हिफाजत की सतह हर इलाके में मुख्तलिफ थी। काले का रास्ता सबसे मजबूत दिफा रखता था, क्योंकि अडोल्फ हिटलर कायल था कि डी डे पर हमला वहीं होगा। ताहम मगरबी महाज के कमांडर और अफ्रीका कोर के साबिक सरबराह, रेगिस्तान का लूमड़ कहलाने वाले फील्ड मार्शल अरोन रोमेल का कहना था कि इतराई नारमंडी के साहिलों पर होगी। अगरचे रोमेल ने जोर दिया कि इत्तेहादियों का हमला नारमंडी में होगा, हिटलर अपनी यकीन दहानी पर कायम रहा कि असल हमला काले के रास्ते होगा। इसके नतीजे में कुमक बशमूल बख्तरबंद डिवीजन्स और V1 मिसाइलों के लिए रीम्पी शुमाली बहरेन ओकियानूस के फ्रांस सबलजा साहिली पट्टी पर भेज दी गईं, जबकि नारमंडी को सानवी हैसियत दी गई। इसके बावजूद मगरबी महाज के कमांडर इन चीफ गिरोड फोन रोंदुश्टेड ने रोमेल की इंतबात को मद्देनजर रखा, जिसने जोर देकर कहा था, लड़ाई साहिल पर फैसला कुन होगी, ये जंग का सबसे तवील दिन होगा। फोंटेन बिल्लो के किले से रोमेल ने ग्रुप ऑफ आर्मी बी की दिफाई तैयारियों की निगरानी की, हालांकि इसका किरदार ज़्यादातर तकनीकी था न कि अमलियती। नारमंडी के दिफाई निज़ाम में तकरीबन 10,000 किले शामिल थे, जिनमें से कई एक दूसरे से कंक्रीट की दीवारों के जरिए जुड़े हुए थे। इसके अलावा बंकर्स, खंदकें और 170 साहली बैटरियां जो फौलाद से महफूज थीं। उनके हथियारों में 88 मिलीमीटर तोपें, मॉर्टर्स और MG-42 मशीन गिनें शामिल थीं, जो अहम मकामात पर नस्ब थीं। बाज़ सूरतों में लियोपोल्ड बख्तरबंद रेलगाड़ियां भी तैनात की गई थीं। इन दिफात के सामने कई किलोमीटर खारदार तारें, 6 मिलियन बारूदी सुरंगें और एंटी व्हीकल रुकावटें लगाई गई थीं। इसके अलावा दरख्तों के तने, 4,500 कंक्रीट के सतून, 4,700 लकड़ी के सतून, टैंक रोकने के लिए खंदकें, पथरीले टीले और 11,000 धमाका खेज मवाद वाले सतून नस्ब किए गए थे, जिन्हें रोमेल के अस्पिरज कहा जाता था। इसने मजीद आलात भी डिज़ाइन किए, जैसे 5,000 कंक्रीट के टेट्राहेड्रस, 2,400 रेल से बने रुकावटें, 16,000 आबी रुकावटें जो कश्तियां फाड़ने के लिए नस्ब थीं, और 7,000 चीनी मिट्टी से बनी बारूदी सुरंगें जो सस्ती पैदावार के लिए तैयार की गई थीं। प्राट्रोपुर्स को रोकने के लिए ख़ास तौर पर नारमंडी और कॉन्टिनेंटल जजीरा नुमा के रास्तों में वसी इलाकों को ज़ेर आब कर दिया गया था। महवर का मजमूई दस्ता 50,350 अफराद पर मुश्तमिल था, जिनमें 41,000 जर्मन और 8,000 से ज़ायद रज़ाकार शामिल थे, जो रूस, यूक्रेन, पोलैंड, वस्ती एशिया हता के कोरिया, चीन और जापान से ताल्लुक़ रखते थे। अफवाज को ऊटा, ओमाहा, गोल्ड, जूनो और सोवर्ड के साहिलों पर तकसीम किया गया था। हर सेक्टर में साहिली लाइन की हिफाजत के लिए दस्ते तैनात थे। पुश्त पर वीहरमुख्त के तजर्बाकार फौजी 21वीं पेंजर डिवीजन के अरकान, हिटलर यूथ के नौजवान, कुर्रिगुसमरीन की मुसल्ला यूनिट, विशी फ्रांस की मिलिशिया के अरकान और लिफ्ट वाफे का अमला तैनात था। 5 जून 1944 को यलगार से एक दिन कबल कई गैर मुतवक्के वाक़यात ने जर्मन रद्द अमल को पेचीदा कर दिया। इनमें सबसे अहम वाक़या फील्ड मार्शल अरोन रोमेल की गैर मौजूदगी थी, जो अपनी बीवी लूसी की सालगिरह मनाने के लिए जर्मनी के हीरलिंगेन गए थे, जहां उन्होंने पेरिस की एक खुसूसी जूते साज दुकान से बनवाए गए हिरन के चमड़े के जूते तोहफे में दिए। उनकी गैर मौजूदगी में फ्रांस में कमान जनरल गिरोड फोन रोंदुश्टेड के पास आ गई, जिन्होंने ख़राब मौसम की वजह से इत्तेहादियों की अलगार के इम्कान को रद्द कर दिया और मुकम्मल अलर्ट का हुक्म नहीं दिया। लिफ्ट वाफे ने भी फ़िज़ाई निगरानी में इजाफा नहीं किया और अपनी मौजूदगी कम कर दी। 140 तैयारों से कम होकर सिर्फ 36 रह गए, क्योंकि ज़्यादातर जहाज़ पहले ही मशरक़ी महाज पर भेज दिए गए थे। साथ ही नेवल इंटेलिजेंस के सरबराह एडमिरल विलालिम कानरीस ने फ्रांसीसी मुज़ाहमत की तरफ से भेजे गए अहम इंतबात को नज़रअंदाज कर दिया। रात के वक्त गोरीलों ने लंदन को पाल वर्लिन के अशार पर मबनी एक खुफिया पैगाम भेजा, ख़िज़ा के वायलन की तवील सिस्कियाँ मेरे दिल को मध्यम उदासी से ज़ख्मी करती है। वो रात वाहिद वक्त था जब जनरल वर्नर पिल्सकाट 352 और इन्फेंट्री डिवीजन के रहनुमा अपनी जगह पर मौजूद थे। अपने कुत्ते और कुछ फौजियों के साथ उन्होंने ओमाहा के साहिल की निगरानी की, जहां ऑपरेशन ओवरलॉर्ड को सबसे बड़ा धचका देना था। डी डे की रात, फ़िज़ाई कार्रवाइयां और पिल्लों पर कब्जा। 6 जून 1944 को रात 12:03 पर 5 बरतानवी होरस्सा ग्लाइडर्स, जो लंकास्टर बम्बारों के जरिए खींचे जा रहे थे, दरियाए ओरन के दहाने के करीब कीन नहर के ऊपर परवाज के दौरान अलग हो गए। वो तेज़ी से नीचे उतरे बगैर जर्मन मुहाफिजों की नज़रों में आए,
और पेगासस पिल से 20 से 40 मीटर के फासले पर उतरे। जमीन पर पहुंचते ही 22वीं आज़ाद पैराट्रूपर कंपनी के कमांडोज, जिनकी क़ियादत कमांडर जॉन हावर्ड कर रहे थे, फौरी तौर पर हरकत में आए और पिल पर कब्जा कर लिया। इब्तिदाई झड़प में एक जर्मन मुहाफिज और बरतानवी लेफ्टिनेंट हिरमन बिरादर्ज मारे गए और यूं वो डी-डे की पहली हलाकतें बने। पिल पर फायरिंग का तबादला 1 मिनट से भी कम वक्त में ख़त्म हो गया। कमांडोज ने पिल को महफूज बनाया, दुश्मन की छावनी को गैर फ़ाल किया और कैफ़े गोनुद्री में अपना अड्डा कायम किया, जो फ्रांस में आज़ाद होने वाला पहला घर था। इसी वक्त मज़ीद 3 ग्लाइडर्स 200 मीटर दूर उतरे और रानवेल पिल के घूमने वाले मैकानिज़्म पर कब्जा किया, जिसमें 16 जानी नुकसान हुआ, जिनमें 2 हलाकतें और 14 ज़ख्मी शामिल थे। पेगासस पिल पर काबिज़ होने के बाद बरतानवियों को सिर्फ सुबह तक सॉवर्ड बीच से आने वाली अफवाज का इंतज़ार करना था। 12:10 पर अमरीकी पैराट्रूपर्स ने कॉन्टिंटन जजीरा नुमा पर छलांग लगाई ताकि हवाई डिवीजन्स की लैंडिंग की तैयारी की जा सके। साथ ही बरतानवी फौज ने दरियाए ओरन के करीब इसी तरह की कार्रवाई की ताकि कुमक हासिल की जा सके। इसी दौरान लंकास्टर बम्बारों ने शेरबोर्ग से कीन तक जर्मन ठिकानों पर बमबारी की, जिसमें 11,000 टन से ज़्यादा धमाका खेज मवाद गिराया गया। हज़ारों हलाकतें हुईं और बड़े पैमाने पर तबाही हुई। फ्रांस के अंदर मुज़ाहमती जंगजुओं ने मवासलाती निज़ाम और रेलवे लाइनों को सबूताज किया, जिससे कई जर्मन ट्रेनें पटरी से उतर गईं। आधी रात के बाद 822 C-47 डकोटा तैयारे और 520 होरस्सा ग्लाइडर्स बरतानिया से 13,100 पैराट्रूपर्स, 14 75 मिलीमीटर तोपें और तकरीबन 400 टन सामान लेकर रवाना हुए। जर्मनों को धोखा देने की कोशिश में 40 बमबार तैयारों ने 450 रबड़ के पतले और धमाका खेज मवाद से लदे पैराशूट गिराए, जबकि लाउड स्पीकरों वाले कमांडोज ने फर्जी लड़ाइयों की आवाज़ें पैदा कीं। ये चाल कामयाब रही और जर्मन अफवाज ने वहां कुमक भेज दी, जिससे अहम लैंडिंग पॉइंट्स पर उनकी दिफाई ताकत कमज़ोर हो गई। सुबह 1:20 पर 82 और 101 डिवीजन्स के पैराट्रूपर्स ने कॉन्टिंटन जजीरा नुमा के ऊपर परवाज़ की। जैसे ही उन्हें देखा गया, सर्च लाइट्स ने आसमान रोशन कर दिया और जर्मन एंटी एयरक्राफ्ट बेटियों ने शदीद गोलाबारी शुरू कर दी। इस हमले ने कत्ल आम बर्पा कर दिया। कई C-47 डकोटा तैयारे निशाना बने और फिजा में ही फट गए, जिससे फौजी हवा में बखर गए। कुछ तैयारों के अंदर जलते हुए फंसे रह गए और मलबे के साथ जमीन पर आ गिरे। मजीद नुकसान से बचने के लिए कमांडरों ने ओंगोगो के नारे के साथ छलांग लगाने का हुक्म दिया। 40 किलोग्राम साजो सामान और 25 किलोग्राम इजाफी इशारती मवाद के साथ हज़ारों फौजियों ने छलांग लगाई। ताहम कई मारे गए, कुछ फिजा में ही निशाना बने, दूसरे पैराशूट की खराबी के बाइस जमीन पर गिरकर हलाक हो गए। जमीन पर पहुंचने के बाद भी भयानक सूरत-ए-हाल जारी रही। होशियार जर्मन फौजियों ने उन पर फायरिंग की जो जिंदा उतरे। कुछ दलदली इलाकों में गिरकर डूब गए, कुछ दरख्तों और छतों में फंस गए। ग्लाइडर्स का हाल भी कुछ बेहतर न था, कई सैलाब ज़दा इलाकों में गिर गए या क्रैश कर गए, जिससे उनके सवार उलझन का शिकार हो गए। मुकम्मल अफरा-तफरी छा गई, कोई अपनी सही पोजीशन नहीं जानता था और तमाम दस्ते मुंतशिर हो चुके थे। अंधेरे में राब्ते के लिए अमरीकी फौजी मेंढक की आवाज़ निकालने वाली सीटियां साथ लाए थे, मगर जर्मनों ने एक सीटी पकड़ ली और इसे फौजियों को घात में लाने के लिए इस्तेमाल किया। इस हलाकत खेज रात के दौरान 42 C-47 डकोटा तैयारे मार गिराए गए और 159 को नुकसान पहुंचाकर इंग्लैंड वापस लूटना पड़ा। होरस्सा ग्लाइडर्स को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिनमें जनरल डॉन प्राट भी शामिल थे, जो हैसवेल के करीब हादसे में जाँ बहक हो गए। कुछ मिशंस मुकम्मल तबाहकुन साबित हुए, जैसे ली पोर्ट पिल्लों पर कब्जे की कोशिश, जहां 575 फौजियों में से 168 हलाक आ जख्मी हुए, जिनमें 93 हलाक और 75 कैदी बनाए गए। नीवीले ओपलैन में 2 कंपनियों ने चंद घंटों के लिए इलाका हासिल किया, मगर जर्मन जवाबी हमले ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिसमें 28 सिपाही मारे गए। सेनेट कोम में वाहिद जिंदा बचने वाला कापवर्ल जोसेफ बियरले एक चर्च पर गिरा पकड़ा गया और महीनों बाद कैद खाने से फरार होकर रेड आर्मी में शामिल हो गया। बावजूद शदीद इंतशार के कुछ ग्रुप अपनी जिम्मेदारी निभाने में कामयाब रहे, जैसे 150 फौजियों ने लाबारकेट की सिल्विस पर कब्जा किया, जिन्होंने शेफ डवपोनट और सान मार्टिन दे वारिवेल की तर्कशदा बैटरी पर कब्जा किया। सिर्फ 10% पैराट्रूपर्स तयशदा जोन में उतरे, बाकी 8 से 40 किलोमीटर दूर लैंड किए।
इनमें से सिर्फ 44 इंग्लैंड वापस पहुंचे 35 जख्मियों की वजह से और 9 फरार होकर। एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया सेनेट मीर एग्लीज में पेश आया, जहां एक आग ने पूरे इलाके को रोशन कर दिया एंड इसी वक्त जब 82 डिवीजन की कंपनी एफ उतर रही थी। जर्मनों ने होशियारी से फायरिंग की और तकरीबन तमाम फौजियों को हलाक कर दिया। कुछ दरख्तों और इमारतों से लटक गए, एक जल कर मर गया और दूसरा चर्च की छत से फिसल कर गिर गया। सिर्फ सिपाही जॉन स्टीले जिंदा बचा, जो मुर्दा बनकर घंटी के टावर से लटका रहा, अगरचे घंटियों की मुसलसल आवाज़ ने इसे जज़वी तौर पर बहरा कर दिया। छठी फ़िज़ाई डिवीज़न का तजर्बा मुख्तलिफ था। 8,000 फौजियों और 355 होरस्सा ग्लाइडर्स के साथ उनका मिशन नॉर्मंडी के मशरक़ी पिल्लों को तबाह करना था ताकि दुश्मन के जवाबी हमले को रोका जा सके। बरतानवियों ने कामयाबी से अपना हदफ हासिल किया। 6 गाड़ियों को PIAT ग्रेनेड लॉन्चरों से तबाह करने के बाद बोरिस पिल को उड़ा दिया और एक छोटे ग्रुप ने एक जीप के साथ दुश्मन की सफ़ों में घुसकर ट्रुआरन पिल को तबाह कर दिया। कैनेडियनों ने शदीद जानी नुकसान के बावजूद दरियाए दियोटी पर वारावेल और रूबे होम के पिल्लों को गिरा दिया। सुबह 3 बजे के करीब आखिरी प्राट्रोपुर्स ज़मीन पर उतरे, जबकि इत्तेहादी फ़िज़ाइया ने नॉर्मंडी में रेलवे रास्तों और मवासलाती मराकज़ पर बमबारी जारी रखी। सेनेट लो में पहले ही अलर्ट जारी हो चुका था, मगर पेरिस और बर्लिन में कोई बरवक्त रद्द अमल नहीं दिया गया। दरी असना इत्तेहादी बीड़ा साहिल से 11 से 15 समंदरी मील दूर था और फौजी लैंडिंग कश्तियों में सवार हो रहे थे। इसी वक्त सार्जेंट जॉन ज़ीनेडर की क़यादत में एक प्लाटून सेनेट मार्कोफ के जजीरे पर उतरा। अगरचे उन्होंने ज़मीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन अनीस जानी नुकसान उठाया, जिनमें 2 फौजी बारूदी सुरंगों और बमों की जद में आकर हलाक हो गए। मीरवील पर हमला और यूटा में लैंडिंग। जब घड़ी ने सुबह 3:35 का वक्त दिखाया, तो जर्मन 716वें डिवीज़न के सिपाही बिलाखिर कमांडर जॉन हावर्ड की क़यादत में दरियाए ओरन पर पेगासस पिल पर काबिज़ बरतानवी अफवाज का पता लगाने में कामयाब हो गए। इत्तला तेज़ी से 21वीं पेंजर डिवीज़न के करीबी दस्ते तक पहुंची, जिसने एक बख्तरबंद कालम को उनका सामना करने के लिए रवाना किया। ताहम तनाज़ा के मकाम पर पहुंचते ही पेश कदमी अचानक रुक गई, जब एक जर्मन टैंक बरतानवियों की तरफ से दागे गए PIAT एंटी टैंक हथियार की जद में आ गया। इस हमले ने जर्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि दुश्मन के पास बहुत बड़ी ताकत मौजूद है। सूरत-ए-हाल इस वक्त मज़ीद ख़राब हो गई जब बरतानवियों ने खुद जर्मन फ़ौज का 50 मिलीमीटर का तोप कब्ज़े में लेकर इसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर लिया। उधर दरियाए ओरन से चंद किलोमीटर के फासले पर छठी फ़िज़ाई डिवीज़न के बरतानवी प्राट्रोपुर्स ने तकरीबन सुबह 3:50 पर रेनवेल का कंट्रोल संभाल लिया। उन्होंने आखिरी जर्मन सिपाहियों को ख़त्म करने के बाद इलाके को महफूज बनाया और करीबी खेतों को साफ करके उनमें से बारूदी मवाद और लकड़ी के खंभे हटा दिए ताकि दिन की रोशनी में फ़िज़ाई कुमक के लिए रास्ता हमवार हो सके। छठी फ़िज़ाई डिवीज़न की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक मीरवील बैटरी पर कब्जा था। सिर्फ 170 प्राट्रोपुर्स लेफ्टिनेंट कर्नल टेरेंस ओटवे की क़यादत में इस हमले में शरीक हुए, हालांकि इब्तिदाई मंसूबे के मुताबिक 750 सिपाहियों और इजाफी हथियारों की ज़रूरत थी। सूरत-ए-हाल इस वक्त मुश्किल हो गई जब 6 होरस्सा ग्लाइडर्स हद से ज़्यादा दूर उतर गए, जिसकी वजह से ज़्यादातर लड़के नॉर्मंडी के घने जंगलात में अंधेरे में बखर गए। इसके बावजूद उन्होंने 160 जर्मन मदोफैन, तोपिचों और इंजीनियरों के खिलाफ जंग लड़ी, जो बारूदी सुरंगों से भरा मैदान, दोहरी खारदार तारें और मुताद्दिद कंक्रीट की पनागाहें बनाकर डटे हुए थे। ज़मीनी हमले से कुछ देर कबल बरतानवी फ़िज़ाइया ने 400 टन धमाका खेज़ मवाद के साथ बैटरी पर बमबारी की। थोड़ी ही देर में प्राट्रोपुर्स ने खारदार तारों में 4 रास्ते बना लिए और विकर्स मशीन गन की मदद से पेश कदमी की। हाथों में हाथ की लड़ाई इंतहाई शदीद थी, लेकिन बिलाखिर बरतानवियों ने पोजीशन पर कब्जा कर लिया, जिसकी कीमत भारी जानी नुकसान की सूरत में चुकानी पड़ी। अपनी सफ़ों में 65 हलाक ज़ख्मी, जबकि जर्मनों में 22 हलाक और 25 ज़ख्मी हुए। 6 जून 1944 की सुबह तुलू होते ही जनरल वर्नर पिल्सकार्ट 352 और इन्फेंट्री डिवीज़न के पहले बटालियन के कमांडर एक ऊंचे बंकर से ओमाहा बीच के ऊपर से मुशाहिदा कर रहे थे। उनके साथ उनका कुत्ता था, जो अब तक खामोशी से सो रहा था, मगर अचानक बेदार होकर बगैर किसी वाज़ेह वजह के भौंकने लगा। जब जर्मन अफसर ने दूरबीन से उफ़ुक़ की तरफ देखा तो उसने देखा कि धुंध छुट रही है और यकाएक 6000 इत्तेहादी बहरी जहाज़ हमले के लिए तैयार दिखाई दिए।
ठीक सुबह 5:50 पर इत्तेहादी बेड़े ने नामजद 5 साहिली इलाकों पर गोलाबारी शुरू कर दी। जंगी जहाज़ों, क्रूजर्स और डिस्ट्रार्स ने भारी और दरमियाने दर्जे के गोले बरसाए, जबकि 38,000 रॉकेट साहिल पर गिरे, जिससे हर तरफ गड़े और धुआं छा गया। इसके फौरन बाद 1641 इत्तेहादी तैयारों ने जर्मन पोजीशनों पर हमला किया। B-17 और B-24 लिबर्टर भारी बमबार तैयारों ने बुलंदी से टनों धमाका खेज मवाद गिराया और B-26 माराडर तैयारों ने कम बुलंदी से मजीद तबाही मचाई। ताहम बमबारी की दुरुस्तगी नाकिस रही और अहम अहदाफ महफूज रहे। उधर सैकड़ों लैंडिंग कश्तियां हज़ारों अमरीकी, बरतानवी और कैनेडियन फौजियों को लेकर साहिल की तरफ बढ़ रही थीं। इनमें से कई सिपाही तवील इंतज़ार, समंदरी झटकों और भारी नाश्ते के बाइस थकन और मतली का शिकार थे। इसके बरक्स जर्मन दिफाई फौजी बैंकरों और खंदकों में तवानाई और चौकसी के साथ हमले को रोकने के लिए तैयार थे। सुबह 6:30 पर चौथी इन्फेंट्री डिवीजन ने यूटा बीच पर 23,250 सिपाहियों और 32 शर्मीन DD टैंकों के साथ इतराई की। नेविगेशन की गलती के बाइस पहली लहर मुकर्ररा साहिल से मुख्तलिफ जगह पर उतरी, मगर इत्तेफाकना ये उनके लिए फ़ायदा मंद साबित हुआ क्योंकि इस इलाके पर पहले ही गलती से बमबारी हो चुकी थी। मुज़ाहमत कमज़ोर थी, महज चंद जर्मन स्नापर्स और मार्टर टीमें पेशकदमी रोकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन नाकाम रहे। अमरीकी अफवाज ने तेज़ी से कंक्रीट के मौज शिकन में शिगाफ पैदा कर लिया। खुश्की से जनरल थियोडोर रोज़वेल्ट जूनियर, सदर फ्रैंकलिन डी रोज़वेल्ट के बेटे, ने अपने सिपाहियों का जोश बढ़ाया। आओ यहीं से लड़ाई शुरू करते हैं। इस इब्तिदाई फ़ायदे की बदौलत इत्तेहादी अफवाज ने बग़ैर ज़्यादा मुज़ाहमत के अहम दिफाई मकामात को गैर फ़आल कर दिया। ला मेडलिन में वाक़े रीडोट W वांडस और W आनी 5 को साफ कर दिया गया, हालांकि मुअख्खर अल-ज़िक्र ने एक शर्मीन DD टैंक को तबाह करने में कामयाबी हासिल की। स्टॉपनों की कलाबंदी B-26 माराडर बमबार तैयारों के हमले के बाद नाकारा हो गई, जबकि इज़विले बैटरी का मरकज़ी बनकर 105 मिलीमीटर गोले के हमले से तबाह हो गया, जिससे पूरी अमला हलाक हो गया। वाहिद जर्मन पोजीशन जिसने सख्त मुज़ाहमत की वो क्रिस्बैक बैटरी थी, जो 210 मिलीमीटर की सकोदी तोपों और 150 मिलीमीटर के सोवियत हुफ्ज़र के साथ साथ कई दीगर जंगी तनसीबात से लैस थी। शदीद बहरी गोलाबारी, जिसमें USS नेवाडा, USS आर्कनसास और USS टेक्सास शामिल थे, और 150 B-17 और B-24 तैयारों की फ़िज़ाई बमबारी के बावजूद सिर्फ 3 तोपें तबाह की जा सकें। एक तोप जो बाकी रही, इसने USS कोरी डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाकर डुबो दिया, जिसमें 4 मल्लाह हलाक हो गए। इसके बावजूद यूटा बीच तेज़ी से महफूज कर लिया गया, जिसमें इत्तेहादियों की 429 जानी नुकसान और 4 शर्मीन DD टैंकों की तबाही हुई, जिनमें से 2 समंदरी लहरों की नज़र हो गए। ओमाहा में खुनरेज लैंडिंग और पॉनट डव हाक का मिशन। ओमाहा बीच नॉर्मंडी में लैंडिंग का कलीदी मकाम बन गया और साथ ही सबसे खुनरेज मंजर भी। फौजियों की आमद से पहले अमरीकी बहरी बेड़े ने 20 जंगी जहाज़ों, जिनमें USS टेक्सास और USS आर्कनसास के जंगी जहाज़, क्रूजर्स और डिस्ट्रार्स शामिल थे, के ज़रिए इब्तिदाई बमबारी की। चंद मिनट बाद नौ कश्तियों पर नस्ब रॉकेट लॉन्चर्स ने 4,500 मीटर के फासले से 1,000 से ज़ायद 127 मिलीमीटर के गोले दागे। ताहम हमला अपने अहदाफ को नहीं पहुंच सका। कई गोले हदफ से पहले गिरे, कुछ हदफ से आगे निकल गए, और नतीजा ये निकला कि जब हमला शुरू हुआ तो जर्मन कलाबंदियां बदस्तूर मुकम्मल ऑपरेशनल हालत में थीं। 8 किलोमीटर साहिली पट्टी का दिफा तकरीबन 7,000 जर्मन सिपाहियों के जिम्मे था, जो 50 मीटर ऊंची चट्टानों पर तैनात थे, जिसने उन्हें एक स्ट्रेटजिक बर्तरी फराहम की। उनके हथियारों में तोपें, मार्टर, रॉकेट लॉन्चर्स और एंटी टैंक गन्स शामिल थीं। इसके अलावा सैकड़ों रुकावटें पानी और रेत में नस्ब की गई थीं, ताकि इत्तेहादी अफवाज की पेशकदमी को रोका जा सके। साहिल से मुख्तलिफ फासिलों पर धमाका खेज मवाद से लैस खंबे, धात की रुकावटें और दीगर आलात लगाए गए थे, ताकि लैंडिंग कश्तियों को तबाह किया जा सके। सुबह 6:36 पर पहली और 29वीं इन्फेंट्री डिवीजन के 34,250 सिपाही साहिल की तरफ बढ़े। पहुंचने से पहले ही जर्मन बैटरियों ने फायरिंग शुरू कर दी और कई कश्तियां चैनल के वस्त में ही तबाह कर दें। दीगर कश्तियां ज़ेर आब रुकावटों से टकरा कर बेकार हो गईं। जो कश्तियां साहिल तक पहुंची, उन्होंने अपनी रीम्पी खोली और इसी लम्हे दहशत का आगाज हो गया। कुछ सिपाही वजनदार बैग्स के सबब पानी में डूबकर हलाक हो गए। दीगर सिपाही दुश्मन की गोलियों का निशाना बने।
लैंडिंग कश्तियां मौत के फंदे बन गईं, जहां मशीन गन्नों की बौछार ने अंदर फंसे सिपाहियों को बेदर्दी से निशाना बनाया। जो फौजी साहिल पर उतरने में कामयाब हुए, उन्हें बारूदी सुरंगों और गोलियों की बारिश के दरमियान आगे बढ़ना पड़ा। इब्तिदाई मिनटों में कई यूनिटें तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। मोंट ले मोलेंस के सेक्टर में 116वें रेजिमेंट के तमाम अफसरान और नायब अफसरान चंद मिनटों में मारे गए। 29 शर्मीन डी टैंकों में से सिर्फ 2 साहिल तक पहुंच सके, लेकिन वो भी जंग में हिस्सा लेने से पहले ही नाकारा हो गए। बाज़ सेक्टरों में हलाकतें 75% से तजावुज़ कर गईं और बच जाने वाले सिपाही रेत में गड़े खोद कर किसी भी दस्तयाब रुकावट के पीछे पनाह लेने पर मजबूर हो गए। इस वक्त ओमाहा में लैंडिंग नाकामी की तरफ जाती नजर आ रही थी। दरी असना, यूटा और ओमाहा के दरमियान 255 रेंजर्स पॉनेट डवहाक की चट्टानों पर सुबह 7:10 पर उतरे। उनका मिशन था कि जर्मन पोजीशन पर कब्जा करें, जहां ये यकीन किया जा रहा था कि 6 155 मिलीमीटर तोपें मौजूद हैं, जो बंकर्स और मशीन गन निचेज से महफूज थीं। यूएसएस टेक्सास और फिजाइया ने इस पोजीशन को शदीद बमबारी से कमज़ोर करने की कोशिश की थी, मगर तोपखाना बदस्तूर फ़ाल था। चट्टानों की बुलंदी से जर्मनों को हमले की मुकम्मल मंजर कशी हासिल थी और वो निहायत शिद्दत से सिपाहियों पर गोलाबारी कर रहे थे। रेंजर्स, जो ग्रापिंग हुक वाले रस्सों और चढ़ने वाले आलात से लैस थे, चट्टानी दीवारों पर चढ़ने लगे। कुछ रस्से जर्मनों ने काट दिए, जिससे सिपाही नीचे गिरकर हलाक हो गए। दीगर सिपाही चढ़ाई के दौरान ही निशाना बन गए। शदीद जानी नुकसान के बावजूद यूएसएस सीटरली डिस्ट्रॉयर की मदद से 40 मिनट की सख्त जिदोजहद के बाद वो चट्टान की चोटी तक पहुंचने में कामयाब हो गए। वहां उन्होंने खंदकों में लड़ाई की और बंकर्स को क्लियर करके जर्मन दिफा को पसपा कर दिया। ताहम जब उन्होंने इलाका छाना तो मालूम हुआ कि तोपें वहां मौजूद नहीं थीं। जर्मनों ने पहले ही उन्हें हटाकर नॉर्मंडी के अंदरूनी इलाकों में मुंतकिल कर दिया था। चट्टान पर चढ़ाई में 135 रेंजर्स की कुर्बानी बज़ाहिर बेफ़ायदा साबित हुई। बाद में एक गश्ती मिशन के दौरान ब्रिगेडियर लियोनार्ड लोमील और सार्जेंट जैक कोहन ने 600 मीटर दूर छोड़े गए तोपों को दरियाफ्त किया। बगैर वक्त ज़ाये किए उन्होंने उनके तोपदानों में दस्ती बम फेंक कर उन्हें नाकारा बना दिया, इस तरह यकीनी बनाया कि वो इत्तेहादी अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। गोल्ड और जूनों पर हमला, आग और मुज़ाहमत। सुबह 7:25 पर बरतानवी अफवाज ने ओ गोल्ड बीच पर हमला किया। करीब पहुंचते वक्त अचानक हवा का रुख बदल गया, जिससे कश्तियां बहक गईं और समंदर की लहरों ने 4 LCI बारिकाज़ को डुबो दिया, जबकि 11 कश्तियां ज़ेर आब रुकावटों में फंस गईं। इसके बावजूद जब 24,970 बरतानवी फौजियों ने साहिल पर कदम रखा तो 50वें नॉरम्ब्रियन इन्फेंट्री डिवीजन, 8वीं बख्तरबंद ब्रिगेड और 47वीं रॉयल मैरीन कमांडो ने रेत पर पेश कदमी की और पुश्तों को उबूर किया, जबकि दिफाई सिपाही मुंतशिर थे और मुनज़्ज़म होने का वक्त नहीं पा सके थे। सिर्फ हामिल में, जो एक मजबूत कलाबंद रिजोर्ट था, अहम मुज़ाहमत हुई, जहां सफ़ेद रूसी मुहाफ़िज़ीन ने 3 शर्मीन डी टैंक तबाह कर दिए और 60 बरतानवी फौजियों को नुकसान पहुंचाया, जिनमें 20 हलाक और 40 जख्मी हुए। ताहम जब दस्ता हथियार डाल गया तो बरतानवी अफवाज ने अंदरून मुख पेश कदमी जारी रखी। साहिल के एक और मकाम पर किंग पोजीशन में छुपा हुआ एक 88 मिलीमीटर तोप ने रॉयल ड्रैगन के कई बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया, लेकिन बाद में 3 चर्चिल टैंकों के हमले में तबाह कर दिया गया। इसी तरह का वाकया रिडाउट W में पेश आया, जहां एक और फ्लैग 88 तोप को ख़त्म कर दिया गया और बरतानवी फौजियों ने लाइट हाउस और लारिवियर पर कब्जा कर लिया। इन लड़ाइयों के दौरान बरतानवी फौज ने 30 जर्मन सिपाहियों को गिरफ्तार किया, मगर 90 बरतानवी सिपाही मारे गए या जख्मी हुए, जिनमें 30 हलाक और 60 जख्मी थे। इसके अलावा कई बख्तरबंद गाड़ियां भी ज़ाय हो गईं। चंद घंटों बाद सार्जेंट फर्स्ट क्लास स्टेनली होलिस नॉर्मंडी के देही इलाकों में दाखिल हुआ और विला पालांगाना पहुंचकर एक बंकर में दस्ती बम फेंका, अंदर मौजूद जर्मनों को ख़त्म कर दिया। बाद अज़ां स्टेन सब मशीन गन से करीबी खंदकें साफ की और गोल्ड बीच पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया, जिस कारनामे पर इसे विक्टोरिया क्रास से नवाजा गया। सुबह 7:35 पर कैनेडियन अफवाज और जूनो बीच पर उतरी। 21,400 फौजियों पर मुश्तमिल 3री इन्फेंट्री डिवीजन को शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, क्योंकि इब्तिदाई बमबारी ने सिर्फ 14% दुश्मन की कलाबंदियों को नुकसान पहुंचाया था।
یہ علاقہ 716ویں جرمن ڈویژن اور سفید روسی دستوں نے دفاع کیا تھا، جن کے پاس توپخانے، مارٹر اور مشین گنیں تھیں۔ لینڈنگ کے دوران بہت سی کشتیاں چٹانوں میں چھپی بارودی سرنگوں سے ٹکرا گئیں، جس سے قتل عام برپا ہو گیا۔ پہلی لہر کی 24 کشتیوں میں سے 20 ساحل تک پہنچنے سے پہلے ہی گہرے پانی میں ڈوب گئیں۔ زمین پر پہنچ کر کینیڈین فوجیوں نے ڈی ڈے کی سب سے شدید لڑائیوں میں سے ایک کا سامنا کیا، جس کی شدت صرف اوماہا بیچ کی لڑائی سے پیچھے رہی۔ کورسیلز میں لڑائی انتہائی شدید تھی، جہاں 40% سے زائد ابتدائی دستے ہلاک یا زخمی ہو گئے۔ بعض یونٹوں میں جیسے ڈی کمپنی میں 180 سپاہیوں میں سے صرف 49 زندہ بچے۔ صورتحال اس وقت مزید خراب ہو گئی جب 2 جرمن میسر شمٹ BF-109 لڑاکا طیارے نچلی پرواز میں پہنچے اور سپاہیوں پر فائرنگ کر کے کئی گاڑیاں تباہ کر دیں۔ باوجود اس کے سپاہیوں نے اس وقت راستہ بنایا جب لیفٹیننٹ بل گریسن نے ایک بنکر پر دستی بم پھینک کر اسے ناکارہ بنایا اور اپنی یونٹ کے ساتھ 35 دشمنوں کو گرفتار کیا، جس سے ساحل چھوڑنے کا راستہ کھل گیا۔ اس کامیابی کے بعد اتحادی افواج نے کورسیلز پر قبضہ کر لیا اور جرمن سپاہیوں کو بیرکڈ سے نکال دیا۔ ساتھ ہی میووینس اور برنرس کا کنٹرول بھی سنبھال لیا گیا، جسے کوئنز اون رائفلز فوسر بٹالین نے اپنے قبضے میں لیا۔ تاہم ریڈاؤٹ وانسٹنس میں مزاحمت زیادہ سخت تھی، جہاں دفاع کرنے والوں نے 2 شرمین DD اور 2 چرچل ٹینک تباہ کر دیے، اور ایک مشین گن نے ایک P-47 تھنڈر بولٹ لڑاکا طیارہ مار گرایا۔ کمانڈوز نے لنگرونسورمر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر موٹے کنکریٹ دیواروں اور بارودی سرنگوں کے وسیع میدانوں کے باعث حملہ ناکام رہا اور 300 جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ ان نقصانات کے باوجود کینیڈین افواج نے جونو بیچ کے بقیہ حصے کو محفوظ کر لیا، جس کے دوران انہیں 1035 جانی نقصان اٹھانا پڑا، جن میں 335 ہلاک اور 700 زخمی ہوئے۔ تلوار آخری ساحل پر عزت اور فولاد۔ آخری لینڈنگ صبح 7:35 پر سوروڈ بیچ پر ہوئی، جہاں 28,845 برطانوی اور اسکاٹش فوجی فرانس، بیلجیم، پولینڈ، ناروے، ہنگری، یونان اور آسٹریا کے رضاکاروں کے ساتھ 6 کلومیٹر لمبی ساحلی پٹی پر دشمن کے دفاع کا سامنا کر رہے تھے۔ راستہ ہموار کرنے کے لیے بحری توپخانے نے ویلر ویلی، بینر ویلی، ہال گیٹ اور ماؤنٹ کینسی میں پوزیشنوں پر بمباری کی، جس میں 2 جنگی جہاز، 6 کروزر، 1 مانیٹر اور 10 ڈسٹرائر شامل تھے۔ تاہم ایک جرمن ٹارپیڈو کشتی ایس بوٹے نے جوابی کارروائی کی، 15 ٹارپیڈو داغے اور صرف ایک ضرب سے نارویجین ڈسٹرائر HMNOS سونر کو ڈبو دیا۔ سوروڈ بیچ پر لینڈنگ کا رخ اس وقت بدلا جب برطانوی افواج نے جنرل لارڈ سائمن لووٹ کی قیادت میں ساحل کا کنٹرول سنبھالا، جس نے اپنے سپاہیوں کو بل ملن کی بجائی ہوئی بگ پائپ کی دھن پر قیادت فراہم کی۔ جب ساحلی علاقے کو محفوظ بنا لیا گیا تو لی بریش میں واقع ریڈاؤٹ وانپس کو تباہ کر دیا گیا اور رائل میرینز کے ایک گروپ نے لیون سور میر پر قبضہ کر لیا، حالانکہ اس کارروائی میں 30 فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ برطانویوں نے ریڈاؤٹ ST پٹے کی بیٹری کو تباہ کر دیا، ہرمین ویل پر قبضہ کر لیا، جہاں چرچل بختر بند گاڑیوں نے 50 سے زیادہ گولے داغ کر ریڈاؤٹ یاناٹیرا کو غیر فعال کیا۔ ریڈاؤٹ آنبارہ میں 70 جرمن توپچوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا، اور ریڈاؤٹ 14 کے ساتھ ساتھ پیریئرز کی پہاڑی کو آسانی سے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ واحد بڑی تاخیر کولیویل میں ریڈاؤٹ سولہ پر حملے کے دوران پیش آئی، جہاں پولش کروزر ORP ڈریگن اور برطانوی ڈسٹرائر HMS کیلوین کی مسلسل بمباری کے بعد سفولک انفنٹری بٹالین نے وہاں دفاع کرنے والے 67 جرمن فوجیوں کی ہتھیاری حاصل کی۔ تھوڑی دیر بعد گاؤں کا میئر وہاں پہنچا اور شکر گزاری کے طور پر کاپورل فرید ایشبی اور اس کے سپاہیوں کو کالواڈوس شراب کی ایک بوتل پیش کی۔ یوں سوروڈ بیچ کے لیے جنگ ختم ہوئی، جس کا نتیجہ برطانوی اور ان کے اتحادیوں کے لیے 520 جانی نقصان تھا، جن میں 120 ہلاک اور 400 زخمی تھے۔ اس کے علاوہ 17 شرمین DD ٹینکوں کا نقصان بھی ہوا۔ اگرچہ کامیابی حاصل ہوئی، مگر بھاری سامان کی لینڈنگ میں تاخیر ہوئی کیونکہ زیر آب رکاوٹوں کی بڑی تعداد نے ساحل پر مواد کے اٹکاؤ کا سبب بنا۔ ادھر صبح 8 بجے کے قریب اڈولف ہٹلر جاگا اور اسے نارمنڈی میں حملے کی اطلاع دی گئی۔ اس نے فوری طور پر جرمن اعلیٰ کمان کے ساتھ ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا، جہاں جنرلز ولالیم فان کیٹل اور الفریڈ یوڈل نے اسے محاذ پر صورتحال سے آگاہ کیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہٹلر نے گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا، بلکہ لڑائی کے نتائج پر اعتماد ظاہر کیا اور 21ویں پینزر ڈویژن کو متحرک کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا
आखिरकार वो बर्रे आज़म पर हैं, अब हम उन्हें तबाह कर सकेंगे। सुबह 9 बजे नाज़ी हुकूमत ने रेडियो पर जर्मन अवाम को हमले की इत्तला दी। 10 मिनट बाद अमेरिका की हुकूमत और वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल ने वाशिंगटन और लंदन ने अपने शहरियों को खबरदार किया, जबकि बरतानवी दारुल हुकूमत में एक हुजूम पहली जंग अजीम में मारे गए सिपाहियों की यादगार सीनोटुफ के सामने जमा हो गया। मीदो नंबर 62 और ओमाहा की दरिंदा सिफत, नॉर्मंडी की दोज़ख में 12,000 गोलियां। ओमाहा बीच पर सूरत-ए-हाल मुकम्मल तौर पर तबाहकुन थी, जबकि नॉर्मंडी में दीगर मकामात पर लैंडिंग में कामयाबियां हासिल हो रही थीं। अमरीकी फ़ौजी अहम मकामात पर कब्ज़ा न कर सके और बमुश्किल चंद सानवी मकामात पर काबिज़ हो सके। इनमें से एक प्रोमोन्ट्री पॉइंट डवराज दे ला पुरसे था, जो एक खूनरेज़ लड़ाई के बाद उनके कब्ज़े में आया, जहां भेजे गए 66 सिपाहियों में से सिर्फ 29 जिंदा बचे। एक और मकाम रिडाउट डब्ल्यू वानिपेस्टे था, जो एक M3 हाफ ट्रैक एंटी एयरक्राफ्ट गाड़ी के बराह रास्त हमले के बाद गैर फ़आल कर दिया गया, जबकि रिडाउट डब्ल्यू यानाकिस्टे अपने 2 तोपों समेत तबाह हो गया जब एक शर्मीन DD टैंक ने दुरुस्त निशाना लगाया। हालांकि इससे पहले इसके तोपिचू ने साहिल पर 4 इत्तेहादी बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी थीं। इन छोटे छोटे फतूहात और सेनेट लॉरेंट में एक तंग राह खोलने के बावजूद मजमूई मंजरनामा तबाहकुन था। ईज़ी सेक्टर में 2 कंपनियां हादसाती तौर पर रिडोटस W वांसोसिट्टे और W यानारसिट्टे के सामने उतरने के बाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गईं। ताहम बदतरीन सानिहा उडाग ग्रीन सेक्टर में पेश आया, वेयरवुल के करीब, जहां जानी नुकसान में ज़बरदस्त फ़र्क रहा। 600 अमरीकी मारे गए, जबकि महज 6 जर्मन मुहाफ़िज़ मौजूद थे, जो कंक्रीट की मजबूत कलाबंदियों रिडोटस W172 और W178 और एक पुराने होटल के अंदर छुपे हुए थे, जिसे एक मजबूत मुज़ाहमती मरकज़ में तब्दील कर दिया गया था। ओमाहा की पूरी जंग में सबसे नाजुक मकाम रिडाउट W आनबास्टे का हमला था, जहां अमरीकी अव्वल फ़ौज ने हमले के दौरान सख्त तरीन मुज़ाहमत का सामना किया। इब्तिदाई तौर पर इस पोजीशन की हिफाजत लेफ्टिनेंट बर्नहार्ड फ्रीकिंग की ज़ेर क़यादत सिर्फ 31 सिपाही कर रहे थे। ताहम उनके पास ज़बरदस्त दिफाई लाइन थी, जिसमें 2 75 मिलीमीटर तोपें, 2 50 मिलीमीटर तोपें, मार्टर, भारी मशीन गिने और फुलियम थरवूर से लैस बंकर्स शामिल थे। साहिल तक पहुंचने से पहले ही हमला आवर फ़ौज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। दुश्मन की तोपखाने ने पहली लहर की 13 में से 12 कश्तियों को तबाह नाकारा कर दिया, जिसकी वजह से कई सिपाहियों को पानी में उतरकर तकरीबन 50 मीटर का फासला पैदल तय करना पड़ा। साहिल पर पहुंचने के बाद उनका सामना एक इंतहाई दुश्वार गुजार मैदान से हुआ। 150 मीटर की नंगी रेत, बारूदी सुरंगों वाले खंबे, कांटेदार तारों की बाड़ें, कीचड़ से भरे गड़े, 3 मीटर बुलंद दीवार और ज़मीन रुकावटें। नतीजा एक कत्ल आम की सूरत में निकला। ज़्यादातर गाड़ियां तबाह हो गईं और 78 में से 58 ट्रक और जीपें बर्बाद हो गईं। सिर्फ बहरी डिस्ट्रार्स ने कुछ मदद फराहम की, जिनके तोपों ने 36 बराह रास्त ज़रबों से एक बनकर को नुकसान पहुंचाया। इस हौलनाक मंजर को वो मशहूर फोटोग्राफर रॉबर्ट कापा देख रहा था, जो मौत के दहाने से बाल बाल बचकर निकलने में कामयाब हुआ और इस दोज़ख में 11 तस्वीरें लेने में कामयाब रहा, इससे पहले कि इसे हंगामी तौर पर निकाल लिया गया। ताहम इस दिन का सबसे खौफनाक किरदार जर्मन कापवर्ल हाइनरिश सेवरलो था, जिसने मीदो नंबर 62 में मोर्चा बंद होकर अपनी एमजबुल्सा मशीन गिन से 12,000 गोलियां चलाईं और सैकड़ों अमरीकी फौजियों को हलाक किया, यहां तक कि इसका गोला बारूद खत्म हो गया और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी मोहलिक कारकर्दगी ने इसे तारीख में एक नाम दिया, ओमाहा का दरिंदा। ओमाहा बीच पर अमरीकी अव्वल फौज के लिए सबसे मुश्किल मकाम रिडाउट W आनबास्टे था। अगरचे इब्तिदाई तौर पर वहां सिर्फ 31 जर्मन फौजी लेफ्टिनेंट बर्नहार्ड फ्रीकिंग की क़यादत में मौजूद थे, लेकिन कलाबंदी 2 बंकर्स, 4 मुख्तलिफ कीलबर की तोपों, 3 मार्टरों, 4 मशीन गन्नों और 2 फुलियम थरवूर से लैस कलाबंद मकामात पर मुश्तमिल थी। साहिल तक पहुंचने से पहले ही पहली लहर को तबाह कर दिया गया। 12 में से 12 कश्तियां तोपखाने के हमले में डूब गईं या नाकारा हो गईं। कई सिपाही पानी में कमर तक धंसते हुए तकरीबन 50 मीटर पैदल चलकर ज़मीन तक पहुंचे। वहां उन्हें 150 मीटर की रुकावटों से भरा मैदान मिला, बारूदी खंबे, कांटेदार तारें, 3 मीटर की ढलवान, कीचड़ भरी खंदक, बारूदी सुरंगें और खंदकें। कत्ल आम शदीद था। ज़्यादातर गाड़ियां मलबे में तब्दील हो गईं और 78 में से 58 ट्रक और जीपें तबाह हो गईं। बहरी डिस्ट्रार्स ने 36 बराह रास्त ज़रबों से एक बनकर को निशाना बनाया।
اسی دوزخ میں فوٹوگرافر رابرٹ کاپا نے جان ہتھیلی پر رکھ کر 11 تصاویر کھینچی۔ تاہم دن کا اصل خوفناک چہرہ کاپورل ہائنرش سیورلو تھا، جس نے نیدو نمبر 62 سے 12,000 گولیاں چلا کر سینکڑوں سپاہیوں کو ہلاک کیا، یہاں تک کہ اس کا گولہ بارود ختم ہو گیا اور اسے قیدی بنا لیا گیا۔ تب سے وہ اوماہا کا درندہ کہلانے لگا۔ دوپہر کے وقت سوروڈ بیچ پر برطانوی افواج کو ایک نئی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ پورٹ اینڈ بیسن پر قبضہ کرنے کے بعد کشتیوں کے پھنسنے کی وجہ سے علاقے میں دوبارہ رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ کچھ ایسا ہی جونو بیچ پر ہوا، جہاں تیسری کینیڈین انفنٹری ڈویژن برنرس پر قبضہ کرنے کے بعد ٹریفک کے ازدحام میں پھنس گئی، جس نے کمک کے راستے بند کر دیے۔ اندرون ملک امریکی فضائی ڈویژنوں کو شدید جرمن مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور فرانسیسی مزاحمتی جنگجو بھی ویچی ملیشیا کے ساتھ جھڑپوں میں الجھ کر تعاون فراہم نہ کر سکے۔ کچھ سیکٹروں میں پیش قدمی آسان رہی، خاص طور پر غیر ملکی محور افواج کے خلاف۔ کئی سفید روسی، جارجیائی اور مسلم فوجیوں نے معمولی لڑائی کے بعد ہتھیار ڈال دیے، حالانکہ کچھ استثنا بھی تھا۔ ایک 17 سالہ یوکرینی سپاہی علی بلبانوف نے اپنی مشین گن کی پوزیشن پر گھنٹوں تک مزاحمت کی اور کئی برطانوی فوجیوں کو ہلاک کیا، جبکہ کوریائی کاونگ جونگ یانگ نے بھی اوماہا بیچ پر کئی نقصانات پہنچائے قبل اس کے کہ وہ گرفتار ہو گیا۔ اوماہا بیچ پر صورتحال ہر لمحہ مزید سنگین ہو رہی تھی۔ بریکوٹ کے جنگل سے، جو ساحل سے چند کلومیٹر دور تھا، جرمن 4 105 ملی میٹر توپوں کی بیٹری سے امریکی افواج پر گولہ باری کر رہے تھے، جس سے بھاری جانی نقصان ہوا۔ خوش قسمتی سے 31ویں فضائی ڈویژن کے 30 پراٹروپرس، جن کی قیادت رچرڈ ونٹرز کر رہے تھے اور جو ایزی کمپنی سے تعلق رکھتے تھے، نے پچھلے حصے سے حملہ کر کے 50 جرمن توپچیوں کو حیران کر دیا، جو 2 بلسا مشین گنوں سے دفاع کر رہے تھے۔ تمام امکانات کے خلاف انہوں نے کامیاب حملے کے ذریعے توپوں کو تباہ کر دیا، جس میں 20 جرمن مارے گئے اور 12 قیدی بنا لیے گئے، جبکہ امریکیوں نے صرف 6 جانی نقصان اٹھایا، جن میں 4 ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ یہ حملہ، جو بعد میں فوجی اکیڈمیوں میں ایک حوالہ بن گیا، جرمن دفاع پر کیا گیا واحد ضرب نہیں تھا۔ ہولوڈی میں اسی طرح کی ایک اور 4 توپوں کی بیٹری کو تباہ کر دیا گیا، جب 32 پراٹروپرس نے ایک اسلحہ ڈپو کے دھماکے سے پیدا ہونے والی افراتفری کا فائدہ اٹھایا۔ لڑائی میں 15 جرمن مارے گئے اور 30 کو قید کر لیا گیا، جبکہ باقی 15 فرار ہو گئے۔ صبح کے دوران نارمنڈی میں صورتحال بہتر ہونے لگی۔ یوٹا بیچ پر امریکی فوج 3 کلومیٹر اندر تک پیش قدمی کرتے ہوئے 82 فضائی ڈویژن کے پراٹروپرس سے جا ملی، جنہوں نے قریبی جنگلات میں اپنے زیادہ تر ساتھیوں کو کھو دیا تھا۔ دوسری طرف کینیڈینوں نے جونو بیچ کو آزاد کرا لیا، جبکہ برطانوی فوجیوں نے جان ہاورڈ کی پیراٹروپر یونٹ کی جگہ لے کر پیگاسس پل کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اوستریہم میں 177 فرانسیسی جنگجوؤں پر مشتمل آزاد فرانس کے کمانڈوں نے شہر کے مرکز پر قبضہ کر لیا، جسے حملے کے بعد فرانس کی سرزمین پر پہلا آزاد علاقہ قرار دیا گیا۔ اس کے باوجود جرمن بیٹریوں نے اب بھی اتحادی بحری بیڑے پر تباہ کن حملے جاری رکھے، جس کے نتیجے میں برطانوی ڈسٹرائر HMS ریسلر اور امریکی آبدوز شکن USS پیساک 162 کو ڈبو دیا گیا۔ دوپہر 1 بجے کے قریب اوماہا بیچ پر جرمن مزاحمت نے جنگ کو بظاہر ناقابل جیت بنا دیا تھا۔ دشمن کی گولیوں کی بارش نے سپاہیوں کو مجبور کر دیا کہ وہ چٹانوں کے فطری حفاظتی مقامات کے پیچھے چھپ جائیں۔ نہ پاکابن میں سٹینگ لڑاکا طیارے اور نہ ہی بحری جہازوں کی توپیں جرمن قلعہ بندیوں کو کمزور کر سکیں، جو تقریباً ناقابل تسخیر تھیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جنرل اوما برڈلے نے سنجیدگی سے فوجیوں کو واپس بلانے پر غور کیا، جو کہ ڈی ڈے کی مکمل ناکامی کا مطلب ہوتا۔ لیکن ساحل پر ایک آدمی تھا جو ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ جنرل نارمن کوٹا، جو ویئر کے ڈاگ گرین سیکٹر میں زندہ بچ جانے والا واحد اعلیٰ افسر تھا، نے اپنے سپاہیوں سے ایک تاریخی جملہ کہا: یہاں صرف 2 قسم کے لوگ ہیں، وہ جو مر چکے ہیں اور وہ جو مرنے والے ہیں۔ ان الفاظ سے حوصلہ پا کر امریکی سپاہیوں نے ٹیلوں کے درمیان جتنا بارود اور دھماکہ خیز مواد جمع کر سکتے تھے کیا۔ اگرچہ بہت سے دشمن کے سناپرز کا نشانہ بنے، وہ 500 کلوگرام سچار دھماکہ خیز مواد اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے، جسے انہوں نے اٹلانٹک وال کی بنیاد پر نصب کیا۔ جب یہ دھماکہ کیا گیا تو ایک زبردست دھماکے نے ملبے اور دھات کے ٹکڑوں کو فضا میں اچھال دیا، جرمن دفاعی دیوار میں ایک بڑا شگاف ڈال دیا۔ اس افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سپاہی اپنی پناگاہوں سے نکلے اور جرمنوں پر حملہ کر دیا۔
ہاتھوں میں ہاتھ کی لڑائی میں نیزے اور فلیم تھرور نے دشمن کی صفوں میں تباہی مچا دی۔ 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں امریکی افواج نے اٹلانٹک وال پر قبضہ کر لیا اور اس کی چوٹی پر اپنا پرچم لہرا دیا، یوں نارمنڈی میں لینڈنگ کی ایک فیصلہ کن فتح حاصل کر لی۔ قتل عام 6 جون 1944 کو دوپہر 2 بجے اوماہا بیچ پر آخری فائرنگ کے ساتھ نارمنڈی میں لینڈنگ مکمل ہوئی اور فرانس پر حملے کا آغاز ہوا۔ یہ لڑائی جو آدھی رات کے بعد شروع ہوئی تھی تقریباً 14 گھنٹے جاری رہی۔ حیران کن طور پر وہ دفاعی رکاوٹ جو جرمنوں نے 4 سال میں تعمیر کی تھی 1 دن سے بھی کم وقت میں گر گئی۔ اتحادی افواج نے تقریباً 12,000 جانی نقصان ریکارڈ کیا، جن میں ہلاک، زخمی اور قیدی شامل تھے۔ اس مجموعی تعداد میں امریکہ کو تقریباً 6,000، برطانیہ کو قریباً 4,000، کینیڈا کو 987 اور دیگر اتحادی ممالک کو نسبتاً کم نقصان ہوا، جیسے ناروے کو 32 اور آزاد فرانس کو 12 جانوں کا نقصان۔ سازو سامان کے لحاظ سے نقصان نمایاں تھا۔ 34 ٹینک تباہ ہوئے، 127 طیارے مار گرائے گئے اور تقریباً 300 کشتیاں ڈوب گئیں، جن میں 3 ڈسٹرارس اور متعدد لینڈنگ کرافٹس شامل تھیں۔ دوسری طرف جرمن نقصان تقریباً 6,000 تھا، جو ان کے مخالفین کے مقابلے میں آدھا تھا، جن میں 2,000 فوجی مارے گئے اور 4,000 قیدی بنے۔ مضحکہ خیز طور پر ڈی ڈے پر سب سے زیادہ جانوں کا نقصان فرانس کو ہوا، اتحادی بمباری کی وجہ سے۔ اندازہ ہے کہ کل 10,000 شہری مارے گئے اور اس سے دوگنے زخمی ہوئے، جن میں نارمنڈی، کونٹینٹن جزیرہ نما اور کین کے علاقے شامل تھے۔ ساحلوں پر قبضے کے بعد طویل انتظار کے بعد وہ دوسرا محاذ کھل گیا۔ اس کے بعد جرمنی کو 2 محاذوں پر لڑنے پر مجبور ہونا پڑا، مشرق سے سوویت یونین کا دباؤ اور مغرب سے اتحادی افواج کی پیش قدمی۔ رومیل، جس نے ہٹلر کو کالے کے بجائے نارمنڈی کو مضبوط کرنے پر زور دیا تھا، درست ثابت ہوا۔ جلد ہی جرمن فوج نے اتحادیوں کو روکنے کی اپنی صلاحیت میں کمی ظاہر کی، خاص طور پر جب بیلاروس میں ریڈ آرمی کی جارحیت نے جرمنی کو پورے براعظم میں اپنی فوجیں تقسیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اتحادیوں کی پیش قدمی کو تیز کیا اور اسی سال اگست میں پیرس کی آزادی کی راہ ہموار کی۔ 6 جون 1944 کو 20ویں صدی کے سب سے فیصلہ کن دنوں میں سے ایک کے طور پر یاد رکھا گیا۔ اس نے نہ صرف اتحادیوں کی فتح کو یقینی بنایا، بلکہ اس سے پہلے یورپ میں ان کی موجودگی قائم کر دی گئی کہ سوویت یونین مزید علاقے قبضے میں لے پاتا۔ تاہم انسانی قیمت بہت بھاری تھی، ہزاروں فوجی ساحلوں پر مارے گئے اور بے شمار پراٹروپرز زمین چھوئے بغیر ہی مارے گئے۔ اسی لیے ڈی ڈے تاریخ میں ایک ایسے نام سے محفوظ ہو گیا جو اسے بہترین بیان کرتا ہے: طویل ترین دن۔ نارمنڈی کی لینڈنگ دوسری جنگ عظیم کے سب سے فیصلہ کن واقعات میں سے ایک تھی۔ جو ایک خطرناک بحری حملے کے طور پر شروع ہوا، وہ تیسری ریخ کے خاتمے کا نقطہ آغاز بن گیا۔ محض 14 گھنٹوں کی لڑائی میں اتحادی افواج نے وہ کارنامہ انجام دیا جو ناممکن لگتا تھا: اٹلانٹک وال کو عبور کر کے مغربی یورپ میں ایک مضبوط قدم جمانا۔ تاہم اس کی قیمت تباہ کن تھی۔ حملہ آوروں میں 12,000 سے زائد اور مدافعین میں بھی تقریباً اتنی ہی تعداد میں جانی نقصان ہوا، جس نے جنگ کی شفافیت کو بے نقاب کر دیا۔ فوجی کامیابی کے باوجود نارمنڈی عام شہریوں کے لیے بھی ایک دوزخ بن گیا۔ حیرت انگیز طور پر فرانس وہ ملک تھا جس نے اس دن سب سے زیادہ انسانی جانوں کا نقصان اٹھایا، کم از کم 10,000 شہری اتحادی بمباریوں میں مارے گئے۔ اوماہا بیچ پر قتل عام، جرمن دفاعی پوزیشنوں پر مزاحمت اور قلعہ بندیوں کی شدید مدافعت نے اس تصادم کی سنگینی کا عملی مظاہرہ کیا۔ ڈی ڈے نے نہ صرف جنگ کے انجام کا تعین کیا بلکہ دنیا کی جغرافیائی سیاست کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ اگست 1944 میں پیرس کے سقوط اور مشرق سے سوویت پیش قدمی کے ساتھ جرمنی کا مقدر مہربند ہو گیا۔ یوں طویل ترین دن تاریخ میں اس دن کے طور پر رقم ہو گیا جس نے یورپ کی آزادی کے عمل کا آغاز کیا۔